Welcome to VLearn. This is session number 7 of wireless and mobile networking. In this session, we'll discuss about mobile computing, the activities that we perform, the purpose of mobile computing, and we'll discuss about application of mobile computing. होता क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटिंग हमारे साथ में होती रहे, मतलब हमारे पॉकेट में हो. Means whenever I want to communicate with my computer or whenever I want to access my files, I just put my mobile from my pocket and I can get every file over here. कहीं अगर सपोज मैं अपना मोबाइल भूल गया तो दूसरे किसी का मोबाइल लूँ और उस पर भी मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल करके अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाऊँ. मुझे किसी भी तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो आई कैन गेट कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड देन आई कैन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क. सो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि हम मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर ये चाहते हैं कि हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज़ की ट्रैकिंग हम एक जगह से कर सकें. अब मोबाइल कंप्यूटिंग हमें इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है. इसमें हम करते क्या हैं? मोबाइल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक छोटा सा डिस्प्ले होता है और उसके साथ में हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं. सो with the help of the communication link and with the help of that display, we can communicate with your between your mobile device and your traditional computers. If we talk about the definition part, it's the computing over mobile device, and the main goal is to provide the user to access all his files and resources with the freedom. जहाँ भी चाहे वहाँ से जब चाहे तब वो कहीं से भी अपने resources, अपने files, अपने folders access कर सके. So here you can see, if suppose someone is there for business proposal for some activity and उस समय वो अपना कैटलॉग लेकर के जाना भूल गया, तो the person can show the catalog over the network also. Just get it on his mobile, and whether he plugs in or sends it with Bluetooth or some other medium, so it provide the salesperson is able to communicate whatever he want to communicate just with the freedom of his mobile. अपने मोबाइल के हेल्प से वो सब चीज़ें दिखा सकता है. कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है एमरजेंसीज़ पे. जहाँ भी हमें किसी तरीके के एमरजेंसीज़ हो, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, इन केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंडली, हम गाड़ियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ सपोज आई एम ऑन रोड और इन बेसिकली ट्रेन, स्पेसिफिकली इन ट्रेन, एंड एट दैट टाइम आई cannot use that time for doing any activity. At that time, if I want to read news or I want to check my mails, I can check it on my phone. It can be used for military purposes, like different type of problems are there, like finding out a specific place, selecting the correct route, that is traveling salesman problem. Then there is basically direct access to the central files, and it is a mobile office. Okay. Then वेब एक्सेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर इंटरनेट के लिए. वी कैन यूज़ इट फॉर इंटेलिजेंट ट्रैवल गाइड एंड
if suppose I want to know about a specific location, that लोकेशन डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इस समय जहाँ हूँ यहाँ से सबसे नज़दीक एटीएम कौन सा पड़ेगा, or something like that. And for all these activities I can use the web access. Then it can be used for information source, and it can be used to get information source in two methods like push and pull. Pull में क्या होता है कि we are asking and then we are getting the response. In push we are being forced to read, that means the server is sending us the information about the respective thing. For example, if you are getting news or stock codes, that is a push information. And if you are getting if you are asking for nearest ATM or something like that, then it is your pull information. Then इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि आप डिस्कनेक्टेड ऑपरेशंस कौन कौन सी परफॉर्म करते हैं, या आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, तो यू कैन हैव मल्टीपल गेम्स ओवर देयर. Then you can have some games like network games also can be there. And if you basically want to get location based services can be provided to you. मोबाइल कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस अगर बात करें तो it helps you in selling product in quicker time. It reduces the transaction cost, and basically it increases the communication speed also. It seamless the business process. It provides you competitive pricing, and with the help of mobile computing you can reduce time of ordering any product or selling any product online. Now there is another term comes into the picture, that is WAP, wireless application protocol. What actually is the WAP? WAP is set of protocols which is used to communicate over the wireless medium. And wireless medium में communicate करने के लिए कुछ special जो set of rules हैं उनको हम WAP बोलते हैं. WAP आपके जो है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को एक तरीके के नेटवर्क से जोड़ता है. अब इसमें आपके CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, फ्लेक्स, रिफ्लेक्स, आइडेन, टेट्रा, डेक्ट, इनमें से जितने भी मोबाइल टेक्निक्स हैं इन सभी के बीच में ये कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करता है. इन ऑल द मेथड्स you are having some kind of communication link, and that communication link with the help of WAP is provided to your device in the form of digital network. WAP से अगर हम बात करें कि ओवरऑल कम्युनिकेशन होता कैसे है, इसका कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, तो जो भी आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा होता है, मीन्स वॉट एवर द योर ब्राउज़र इज सेंडिंग, that request is basically transferred to the devices, the mediums that are used for communicating between you and exchange, like CDMA, GSM, CDPD, TDMA, flex or any other method. उसके बाद दूसरी एंड पे पहुंचने के बाद उसको डिकोड किया जाता है एंड अगेन वो सर्वर्स को दे दिया जाता है, जहाँ से कि आपको कंप्यूट करके रिज़ल्ट फॉरवर्ड किया जाता है. अगर वायरलेस आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें बेनिफिट ये होता है कि वी आर यूजिंग ऑप्टिमम मेकिंग यूज़ ऑफ डिवाइस एट ऑप्टिमम लेवल. एंड सेकेंडली, इफ़ वी टॉक अबाउट सपोर्ट पार्ट, सो यहाँ पे हम सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के हेल्प से रिमोट कम्युनिकेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. इसमें आप सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. यू आर नॉट बाउंडेड विद अ स्पेसिफिक डिवाइस, यू आर नॉट बाउंडेड विद अ स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक नंबर.
you are able to access your resources onto any device, any number. All you have to do is you have to share your credentials with the device. वेब के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. देयर इज़ अ वेब डिवाइस, दैट इज़ योर PDA और एनी डिवाइस विच इज़ able to access the web. Then you require a client application and you require a server origin or content application server. So जो आपका वेब डिवाइस होता है वो वेब एनेबल्ड होता है, दैट मीन्स वेब रिलेटेड प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर होती हैं और वो GSM नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकता है वेब के थ्रू कनेक्ट होने के लिए. ठीक है. अगर हम बात करें हाउ द होल प्रोटोकॉल वर्क्स, देन there is a web server, there can be a web server, there is a web proxy, and there can be a wireless network here. अब कोई क्लाइंट यहाँ पे है, कोई यूज़र यहाँ पे है वेब एनेबल डिवाइस के साथ, तो वो अपने वेब क्लाइंट यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जिससे कि वो वेब को एक्सेस कर सकता है, उससे अगर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो वो तो डायरेक्ट WTA सर्वर से कनेक्ट हो सकता है. बट अगर वो सपोज़ वेब सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है यानी नॉर्मल इंटरनेट ब्राउज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे मेमोरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं. कई दफ़ा वेब पेजेस आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो उतने बड़े पेजेस देख नहीं सकता है. उस केस में क्या होता है, वेब प्रॉक्सी के पास आप जाते हैं. वेब प्रॉक्सी जो है आपके HTML फिल्टर्स के हेल्प से वेब सर्वर से कम्युनिकेट होता है. HTML फिल्टर क्या करता है, HTML पे कंटेंट को WML में कन्वर्ट करके वेब प्रॉक्सी को फॉरवर्ड करता है और वेब प्रॉक्सी वेब क्लाइंट को दे देता है. अगर वेब सर्वर के पास कोई WML कंटेंट है तो वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन नहीं की जाती है. नाउ if we talk about this, then there comes another name, that is WML. What actually is WML? It is wireless markup language. It is used for communicating over handheld devices for markup. इसके अंदर आपके HTML जैसे ही टैग्स होते हैं और ये आपके किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या आपके किसी भी मोबाइल डिवाइस के ऊपर ईजिली चले जाते हैं जो वेब एनेबल्ड होते हैं. और वेब के ऊपर इसमें बड़े आराम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. इसके अंदर नॉर्मली हम फॉर्म्स डिज़ाइन करते हैं या डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारे किसी भी वेब सर्वर से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं. इफ़ यू जस्ट वांट टू सी द वेब आर्किटेक्चर, इसमें सबसे पहले वेब एप्लीकेशन लेयर होती है WAE, देन वेब सेशन लेयर होती है WSP, देन WTP इज़ वेब ट्रांजैक्शन लेयर, देन WTSL it is web security layer, and then WDP, that is web transport layer. After this web transport layer there comes GSM or CDMA or whatever the barrier you want to use.